खत्म की जा रही है. So you see के to establish an end-to-end clearance and logistic ecosystem or encompassing all cross-border trade transaction related to import, export or transit. So whole transforming the trade, Pakistan की जो trade है, it's going to be transformed into a digital trade. So पाकिस्तान सिंगल विंडो का ही एक प्रोजेक्ट जो के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट था, दैट इज ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल. सो व्हाट इज ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल? That we can say is a single access point for all information regarding trade procedures, processes, documentary requirements related to import, export and transit trade. So you can see कि यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, like इसमें ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसको ट्रेड बॉडीज, कस्टम्स, मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज गवर्नमेंट की है, वो उसको सपोर्ट दे रही हैं. एंड दैट इज अवेलेबल for general public, for traders, for academia, national, international organizations, for investors. So trade information portal of Pakistan, आप कह सकते हैं कि for all kind of stakeholders जो trade से related है, उनके लिए available है for providing trade related information. Why we require trade information portal of Pakistan? As you know कि Pakistan में whenever you require any kind of trade related information, what we do, we usually go to some government agencies, customs, or हम राब्ता करते हैं जो chambers हैं. So the information is scattered. So trader face difficulties due to lack of current and authentic trade regulatory information. इसी तरह information अगर if the traders do not know what to import and how to import, how to export, so the compliance level will be very minimum. So जो information if information is complete, compliance level will be higher. So इसी तरह जो sources available हैं वो different जगहों पे हैं and people are feeling different difficulties in catching the information. So information was scattered in different places. इसी तरह आप ये देखते हैं कि customs tariff है वो आमतौर पे FBI की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, या लोगों को उसको सर्च करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है. So keeping all these things in mind, पाकिस्तान सिंगल विंडो ने जो प्रोजेक्ट ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल का इसीलिए सामने लाए कि ये जो ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये हमारे ट्रेडर्स तक पहुंच जाए. So the journey was started in 2021. मई जून में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, उसकी स्टडी की गई, प्लान हुआ और उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का विजिट हुआ, उनका प्रोसीजर स्टडी किया गया, देन उसको डिजिटाइज किया गया, वैलिडेट किया गया एंड लिंकेज वाज क्रिएटेड लाइक द टैरिफ को इसके साथ लिंक किया गया ताकि जो भी ट्रेडर किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाह रहा है उसको अवेलेबल हो. और उसके बाद इसको मार्च 2022 में लॉन्च किया गया. आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने वाले इदारे कितने हैं? आई थिंक कि आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पाकिस्तान में मोर देन 70 यानी 77 ऑर्गेनाइजेशंस हैं which are regulating trade in some way or other way. Like कुछ ऐसे इदारे हैं कि they just validate the documents, कुछ issue करते हैं, कुछ just inspection करते हैं. So there are different roles of the organization. So what Trade Information Portal of Pakistan provides, it's a one solution for many problems. Like you can search the commodity and tariff smart search function here. You can find a specific description or PCT code and then you will know कि what are the procedures. और इसमें digital library है, तमाम custom related laws, procedures, acts जो trade से related है they are available. Detailed information on applicable duties available. और इसी तरह जो regulatory agencies हैं जिसका different role है trade में, उनकी एक पूरी list available है. और पाकिस्तान के जितने भी multilateral or bilateral trade agreements and different countries, they are also available on Trade Information Portal. So in this way, ये portal एक
डिफरेंट इश्यूज प्रॉब्लम्स की एक सिंगल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. Now I will ask Faisal to run a video, smart video for your consumption, please. जी सर, थैंक यू सो मच. आवाज नहीं आ रही फैसल साहब, आवाज को भी. अभी सब आवाज आ रही है? दोबारा से चलाइएगा, आवाज नहीं आ रही.
दिया गया है, फोन नंबर है। सो एनी ट्रेडर कैन कॉन्टेक्ट एनी चैम्बर एनी टाइम। जॉइंट चैम्बर्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स और हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं, उसका एक दिया गया है, जैसे पाक ईरान जॉइंट चैम्बर है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। सो इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जो कंट्री का है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में जो जहां पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है वहां पे जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, व्हाट इज दैट? सो पब्लिक हैं। इसी तरह वो प्रोसेस क्या होगा कि आपको परमिट मिले, आप इस प्रोसीजर पे जाके आप व्यू पे क्लिक करें, आपको ये प्रोसीजर भी दिखा देगा। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इस वक्त पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेटेड है और लाइव है, इसलिए इसका प्रोसीजर वेब बेस्ड है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है वेब बेस्ड प्रोसीजर। सो जो भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, आपको किसी भी सतह पे ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कहाँ होगी या कोई प्रोसेस हो रहा है उस पर या नहीं हो रहा। इसी तरह आप फॉर्म्स सर्च करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स इस पे अवेलेबल हैं। जैसे एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट है, उसका कोई टेम्पलेट चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट है, आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस हम इस पे आते हैं कि इसमें हमने डिफरेंट गाइडेड जर्नीज रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक्सपोर्टर बनना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्टेप्स अवेलेबल हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो दो स्टेप्स आर एनलिस्टेड है। इंपोर्ट के लिए इसी तरह गाइड टू ट्रांजिट के लिए, ट्रांजिट में हम देख सकते हैं TIR कार्नेट है, उसके लिए क्या प्रोसीजर और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, तो उसकी एक लिस्ट यहाँ प्रोवाइड की गई है। सो आप ये देख रहे हैं कि ट्रेड से रिलेटेड जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइडेड जर्नीज में हमने कोशिश की है कि हम फॉर एग्जांपल किसी ने इंपोर्ट करनी है व्हीकल, गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करनी है तो क्या प्रोसेस होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप उसको यहाँ लिस्ट कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल और बहुत हेल्पफुल होगा उन तमाम जो हमारे खासतौर पे ओवरसीज भाई हैं उनके लिए, कि उनको ये इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल किसी जगह फोन करके नहीं पूछना पड़ेगी, बल्कि गवर्नमेंट ने ये पोर्टल उनके लिए ही बनाया है और यहाँ से वो एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी जो क्यूरी है उसका आंसर ले सकते हैं। अनदर रिमार्केबल फीचर आप ये देखें कि मार्केट एक्सेस टैब में हमने यहाँ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं। आई होप कि तमाम पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ चल रहे हैं और आप लोग भी अपने सिस्टम के ऊपर या अपने मोबाइल पे इन टैब्स को ओपन कर रहे होंगे और ताकि हमारा ये जर्नी एक साथ चले और इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज और टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो जो डाटा हमने इसके अंदर रखा है दैट इज सोर्स फ्रॉम वीबॉक। आप जानते हैं कि वीबॉक के प्रोसेस में वीबॉक के अंदर से तमाम ट्रेड हो रही है और वीबॉक का डाटा ही हमारे लिए एक इसमें सोर्स है। और उसके ऊपर आपने डिफरेंट ये चेक करके आप ये देख सकते हैं कि उसमें डाटा के मुताबिक हमारे टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन से हैं, टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज कौन सी हैं, एक्सपोर्ट डाटा टोटल, और फॉरेन करेंसी में भी आप डाटा ले सकते हैं। लाइक जो हम देखते हैं टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन सी हैं, तो इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि चूंकि ये डाटा वीबॉक्स से डायरेक्टली हम एक लिंक के जरिए लिया हुआ है, इसकी डाउनलोडिंग और इसको ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 30 मिलियन जो ट्रांजैक्शंस है उसका डाटा इसमें कलेक्ट किया गया है। यहाँ सर्च आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, आप चैप्टर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि आप सिर्फ स्पेसिफिक एक चैप्टर का आपने डाटा लेना है तो आप सिर्फ एक चैप्टर को देख सकते हैं। इस वक्त हमने जो फिजिकल ईयर है 2019 से 2022 तक 3 इयर्स का डाटा इस पे अवेलेबल है। सो आप कस्टमाइज सर्च कर सकते हैं, आपने सिर्फ 21 और 22 को अगर सर्च करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो और इसी तरह आप क्वार्टर स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं, आप लास्ट क्वार्टर का डाटा इस पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक किसी कमोडिटी को हिट करना है तो वो भी है, और अगर आप कंट्री स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं सो दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज में हम देखते हैं कि कनाडा अगर हम सिर्फ सर्च करें तो उसका क्या हमारे पास डाटा आता है।
सो जब हमने कनाडा का सर्च किया कि लास्ट 4th क्वार्टर ऑफ 21 एंड 22, उसके अंदर इसने ये शो कर रहा है हमें कि चैप्टर 39 है, 73 है, उसके फर्दर हेडिंग कमोडिटी को बता रहा है और उसका वॉल्यूम पीकेआर में दे रहा है, और वॉल्यूम वैल्यू एंड वॉल्यूम बोथ आर डिस्प्लेड हियर। और यहाँ आपको बता दूं कि आमतौर पे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दिस इज ओनली फॉर डिस्प्ले, लेकिन डाउनलोड के लिए आपको यहाँ से सर्च करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे एक बार ओपन हो गई है और ये कह रहे हैं कि क्या आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं वैल्यू, वॉल्यूम, चैप्टर। तो आपने किसी तरीके से इसको सॉर्ट करना है, आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ये आपसे पूछेगा कि आपने CSV फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना है या गूगल शीट्स पे या एक्सेल शीट पे। सो वट एवर इज फिजिबल फॉर यू, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डाटा आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और यू कैन कंज्यूम इट लेटर। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि चार्ट्स की सूरत में ये अवेलेबल है कि कौन सा पोर्शन है जो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा बोटल जो ग्रेड्स हैं वो हमारी कनाडा ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। और इसी तरह मैं बाकी चीजें भी दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कंट्रीज को भी ये शो कर रहा है कि टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज हमारे कौन से हैं। अभी उनका डाटा भी इसी तरह आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज आपके सामने एक कह लें कि एक समुंदर हमको कुएं में बंद कर दिया है। जो जितना इसको डाइव इन करेगा, जितना गोताजनी करेगा, वो उतने वो सदफ और गोहर इसमें से निकाल सकता है। और अगेन दिस इज अ ह्यूमन, यू कैन से एक्टिविटी और ह्यूमन एफर्ट। सो इसमें सिस्टम या बैकएंड पे नेट की वजह से आपको डाटा समटाइम स्लो भी हो सकता है, लेकिन यू विल रीच टू सम योर कंक्लूजन। और सेकेंडली ये कि आपकी तरफ से जो फीडबैक होगी इसमें जाहिर है ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलरेडी है, और डाटा को रखने में उन सारी चीज़ों में तो कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो वी आर अवेलेबल। और इसमें एक और चीज़ ये है कि ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने डॉलर टर्म में देखना है डाटा, यानी बाकी जो डाटा है वो पाक रुपीज में दिया गया है, और एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप डॉलर में अपनी या किसी और करेंसी में भी ट्रेड डाटा को सर्च कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि करेंसी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, जो भी करेंसी आपने सिलेक्ट करनी है। यूरो अगर सिलेक्ट करना है तो ये यूरो में उस डाटा को प्रोवाइड कर देगा। गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ सबसे अहम जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है फाइंड योर मार्केट। जो हमारे ट्रेडर्स हैं और जो रिसर्च से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये बहुत अहम फीचर है कि आपने अगर सर्च करना है कि टॉप 25 या 20 प्रोडक्ट्स आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की कौन सी हैं, उसके लिए आप इस पेज पे आइए। सो टॉप 25 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में आपको कंट्रीज के नेम अवेलेबल होंगे, और इसकी फर्दर आप जानना चाह रहे हैं तो आप किसी एक पे क्लिक करें, लाइक मैंने यूके पे क्लिक किया तो अब आपके सामने PCT कोड और उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, और इट इज डिस्प्लेड कि ये 10 टॉप जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूके एक्सपोर्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल बेड शीट्स हैं, तो व्हेन आई क्लिक ऑन द PCT कोड अब आपको ये ITC जो मार्केट एक्सेस मैप है उस पर ले जाएगा, और और आपको ये पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर यूके के अंदर क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर है और कौन सी ट्रेड रेमेडीज हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो इन दिस वे आप जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको सर्च करने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। और इसी तरह अगर हम किसी और प्रोडक्ट या कंट्री पे करते हैं तो वो भी आपके सामने होगा। हम जर्मनी को देखते हैं कि जर्मनी में हमारी टॉप प्रोडक्ट्स जैसे ये डिफरेंट है, टॉवल पे हम सिलेक्ट क्लिक करते हैं, सो ये हमें उस कंट्री का जो टैरिफ है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे सामने ले आएगा। सो आप ये देखें कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको सर्च करने, उसको एनालिसिस करने का बहुत बहुत अहम ये एक फीचर है। इसके बाद आप ट्रेड्स के साथ, चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व होती है, तो लेटेस्ट हमने टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ किया है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा।